ओडिशा रे लोक माननकु खाद्य सुरक्षा देबा एवं स्कूल रे पढुतिबा पिला माननकु पुष्टि देबारे जे साहाय्य करुच्ची से संस्था होची विश्व खाद्य कार्यक्रम बा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जहाँकि आप जानिथिबे 2020 रे नोबेल प्राइज पाइथिला आ से संस्थार जे भारत मुख्य अच्छंती से होचंती विश्व पाराजुली से आज ओडिशा गस्तर आस्तिले द्वितीय थर पई आज मुख्य सचिव को देखा कले आज आमे तांका सह भेट हबा से कौन कार्यक्रम ओडिशार पिलांका पई खाद्य सुरक्षा पई करूछन जाने चेष्टा करिया। सर आपको स्वागत करता हूं कनक न्यूज़ में। आप ओडिशा में जो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाते हैं इसमें क्या न्यूट्रिशन देते हैं बच्चे को और कोई लोगों को आप क्या राहत देते हैं? First of all, thank you very much, Mr. Lakshmi Narayan ji, for this opportunity. The World Food Program is working very closely with Government of India as well as the state government in Odisha. We have varieties of program or partnership working with Government of Odisha. WFP doesn't provide direct food support as such, but we provide various level of technical support and also demonstrate best practices model in different areas. Number one, we work in nutrition support, for example, working in food fortification and also improving the take-home ration for the children under the ICDS program. Also fortification of rice under the school midday meal program. We have also cooperation with the food department in terms of various areas of technical support. And now lately we are working into two more areas. One area is looking into the millet production and see how that good effort in Odisha can be replicated in other parts of India as well as outside India. Plus, we are working in finalizing an agreement. In fact, that's what we were planning to achieve today with Mission Shakti in terms of improving livelihood for women and children. So apart from that, of course, Odisha is very prone to various level of disasters. So, you know, how do we work with the state government in terms of preparedness, risk reduction, adaptation to climate change, and things like that. सर ओडिशा में जो मिलेट मिशन काम कर रहा है जे हमें ओडिया रे को बाजरा भी कहूँ तो ये जो मिलेट मिशन काम कर रहा है लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहा है बोला जाता है, ये कैसे काम कर रहा है? जो ये मिलेट है ना, बाजरा और कोदो, ये न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत अच्छा सीरियल्स हैं, लेकिन आजकल जो मॉडर्न हो गए ना तो लोग ज़्यादा राइस गेहूँ चाहते हैं। लेकिन हमने ये समझाना चाहिए कि ये जो हम पहले यूज़ करते थे ये बहुत अच्छा था, इसको कैसे कल्टीवेट करें। इसका फ़ायदा ये भी है कि इसको पानी कम ज़रूरत होती है, तो ये जहाँ वर्षा रेगुलर नहीं हो जाती तो उस जगह पर ये मिलेट कोदो अच्छी तरह आ सकती है। तो उसको उसकी हिसाब से प्रयोजन में और प्रोडक्शन में हम काम कर रहे हैं। सर ऐसे भी बोला जाता है हमारा देश तो विकास कर रहा है, पृथ्वी के जैसे बस डेवलपिंग कंट्रीज जो विकास तो कर रहे हैं, मगर ये भी बहुत स्टडी आता है, बहुत रिपोर्ट आता है, उन लोगों को जो बैलेंस डाइट वो नहीं मिल रहा है। क्या सोल्यूशन है? ओनली आप एज एन NGO, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ओनली WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विल वर्क इट और अदर विल सॉल्व द प्रॉब्लम? आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने 30-40 साल ऐसा बहुत तरक्की किया है। ये पहले यहाँ खाद्यान्न बहुत बाहर से आती थी, अब इंडिया में प्रोडक्शन होता है और इंडिया और देश बाहर वाले देश को भी एक्सपोर्ट कर रही है। सो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इट्स नॉट दैट प्रोग्रेस हैज़ नॉट बीन मेड। द चैलेंज इज़ अ बैलेंस्ड डाइट।
food and nutrition security is not just availability of food, it is accessibility, and accessibility of diversified food intake at the household level, women and children. And then also the nutrition is a factor of the concern related to health, water sanitation, and also the social habit, the general practices. So we are working in this, balanced way across all these areas. And I think the government of India's initiative like Poshan Abhiyan is a fantastic initiative, including the states like Swachh Bharat, these toilets in every household. These are excellent examples to address in a balanced way the nutrition need. आप जो उड़ीसा घूमे इसी समय आए ट्रैवल किए, उड़ीसा के बारे में आप क्या कहेंगे जी? कैसे प्रोग्राम चल रहा है ये जो न्यूट्रिशन के बारे में, स्टारवेशन को कम करने के बारे में कैसा काम हो रहा है? हमारा जो रिलेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव हैं। तो आपको जब मैंने बताया हम बहुत साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा यहाँ ऑफिस भी है, सब ऑफिस है, तो इस हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और हम 2 और एरिया में कोऑपरेशन एक्सपांड कर रहे हैं, 2-3 एरिया में। और भी ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के ही हिसाब से बहुत तरक्की हो रही है। आपके यहाँ उड़ीसा में अभी राइस का सेल्फ सफिशिएंसी हो चुका है। प्रोडक्शन ये जो फार्मर्स का इनकम डबल हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ चैलेंज नहीं है, यहाँ ट्राइबल एरिया है, तो जो लोग पुरानी हिसाब से रहते हैं उनको सहयोग करना है, उनको सिखाना है, उनको बैलेंस डाइट कंजम्पशन की हिसाब से करना। मैं कल और परसों जो जगह पर बैठने गया था, यही प्रोजेक्ट फील्ड विजिट में गया था, एक स्कूल में गया था जो मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है स्कूल में। अभी तो मिड डे मील नहीं है क्योंकि ये कोरोना के हिसाब से, लेकिन वो स्टूडेंट को टेक होम राशन दिया जा रहा है, एक बात है। दूसरी बात है वो वेजिटेबल गार्डन्स की काम हो रही है उधर। तीसरी बात है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, मैंने खुद आंखें से देखा, बहुत अच्छा से काम हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो 5 किलो प्रत्येक पर्सन पर मंथ दी जा रहा है। जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी, जो हमने देखा जो औरत आ रही थी लेने के लिए दिखाई जाता था कि वो गरीब लोगों के है, उसको बहुत फ़ायदा मिल रहा है ये प्रोग्राम्स का। सर और एक लास्ट बात बोलूँगा कि उड़ीसा एक डिजास्टर प्रोन एरिया है, यहाँ पर बहुत बार साइक्लोन हो रहा है, हर साल साइक्लोन हो रहा है, तो अब डिजास्टर वार्निंग सिस्टम उड़ीसा डेवलप किया है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उड़ीसा सरकार ने बहुत एग्जाम्पल सेट किया है इस बारे में। मैं कई साल पहले म्यांमार में काम करता था। म्यांमार में एक बड़ा साइक्लोन आया था, वहाँ 130,000 लोग मर गए थे, 3 मिलियन आदमी घर विहीन हो गए थे। यहाँ पर आपके साइक्लोन आया, 10 लाख आदमी को हटाया गया, 1-2 आदमी भी नहीं मरा। ये तरक्की है ना, ये प्रगति है, ये प्रिपेयर्डनेस है। हो सकता है और कुछ भी ज़रूरत हो, जैसे हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल। ये जो आंधी बेरी वर्षा और साइक्लोन वो होते जा रहेगा, तो इसके लिए कैसे हिसाब से क्रॉप प्लान करना है और किसान के लिए उनको सेल्फ रिलायंस को कैसे मदद करना है, और तीसरी बात जब ज़रूरत है तो प्रॉम्प्टली उनको खाना और सहयोग देना है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्प्लेस जब लोग होते हैं उनके ला के
औरत को और हिसाब से देखना, आदमियों को और हिसाब से देखना, जो ना इसको फाइन ट्यून करना थोड़ा ज़रूरत है, लेकिन जो काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आपण देखुथिले ओडिशा आसीथिले विश्व पारजुली जे होउचंती हमर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया रो हेड एवं से निश्चित भाव में तांकर जो एक्सपीरियंस अच्छी प्राय 11टा देश रे काम करिसेंती ओडिशा संगरे मध्य से मिसी काम करछन भारत सरकार को भली ओडिशा रे जो खाद्य सुरक्षा हो खाद्य रे जो पुष्टि हो से दिगरे तांकर कार्यक्रम आगु को जारी रहिबो ए आशा से पोषण करछंती। भुवनेश्वर कैमरामैन प्रभात लक्ष्मण कानून को कनक न्यूज।